So now let's go ahead and see how to create this with Azure CLI. So we'll say blob storage account. We are practicing only for blob type, but you can also practice for other types like the files and queues and tables. It's just same way. You can even you can go to documentation of Azure and take the documentation from there. Like I can say Azure storage cloud table creation CLI commands. Or like if you want the UI access also it will give you like step by step. First here you have examples. So here it is for you create a storage account, then you create a table like this in your account, and then you can go ahead and list those table, and in those table you can go ahead and create a new table, and then the connection string will be provided. Use this in your Spring Boot application or MongoDB as a NoSQL. You should be able to get this. So here when you come right, this link Azure CLI latest, you will have all the commands that I'm talking about. So no need to remember anything. Just search for the service like MongoDB, Monitor, Azure Monitor, Azure App Service. Just you have to search for this, let's say app services. You see this? And here you will have the commands of that app service related command. Use that those commands, and here you have app service managed environment. So it is if you click here, you get this example. You will read this and you can create your own. You can run it with a command line interface or you also PowerShell. So everything, every resource it has given, nothing is hidden. So I can give this one as a link in the code. With example also it can. And if you don't want, you are lazy enough, then just ask ChatGPT or Copilot or any Gemini, and those will help you. Let me show now how we can create it using CLI. It's same thing. It's nothing new. Just that we have to do it with CLI. So I will open the command prompt. Commands are already written also in your PDF, which we are following as a reference. So here, so we did all this using uh, portal, and we also went ahead and created a static website hosted storage container in the storage account. Now let's say we have to create a storage account. So AZ storage create a storage account create and then the namespace and then the resource group name, location, and what type of redundancy you want and what kind, access tier. So this is the storage account creation. Let's create this part first. So here we'll put
So we will change this now. We'll give some other name. Let's say INV storage account dev 02. And what is the resource group name it is asking? So you can give, I will give the same dev, but you can also give your test, acceptance, doesn't matter. Let's say I will give acceptance. So test INV RG hyphen test 01 resource group. So this will get created in the test resource group folder. Central Central India SKU is like what is the tier you are choosing for payment and other things. What kind it is? Storage account V2 by default. Access tier is hot. How can we know all this from our own? The recent one which is created, we can easily go here. Then we'll go to the storage account, right, at the top. In the overview, यहाँ कहीं आता है जेसन व्यू. जैसे ही इसको क्लिक करोगे पूरा इसी का जेसन स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो ये देखो SKU क्या है? स्टैंडर्ड LRS. काइंड क्या है? स्टोरेज V2. लोकेशन क्या है? सेंट्रल इंडिया. मैं अपने CLI कमांड में क्या लिख रहा हूँ? वही लिख रहा हूँ. SKU स्टोरेज स्टैंडर्ड LRS. काइंड स्टोरेज अकाउंट स्टोरेज V2. एक्सेस टियर हॉट. यही कर रहे हैं ना? कुछ अलग कर रहे हैं क्या? नीचे होगा एक्सेस टियर भी. उसके अलावा पब्लिक, अगर मुझे पब्लिक एक्सेस एनेबल करना है तो मुझे ये फ्लैग डालना पड़ेगा. पब्लिक एक्सेस हाइफन हाइफन पब्लिक एक्सेस एनेबल्ड. ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. अगर कमांड नहीं पता, दैट इज फाइन. यहाँ स्टोरेज अकाउंट में आएंगे. स्टोरेज अकाउंट ब्लॉब स्टोरेज यहाँ पे है सैंपल. सैंपल्स दिया है बट हमारा सीधा हम जा सकते हैं उसके ये जो CLI के कमांड में ही. सर्च में ऐप सर्विस डाउन डाउन एस स्टोरेज. आई थिंक स्टोरेज में ही होगा. स्टोरेज स्टोरेज ब्लॉब कमांड्स. ब्लॉब कॉपी फाइल कॉपी भी कर सकते हो एक स्टोरेज अकाउंट से दूसरे स्टोरेज अकाउंट में. डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो. ये सब काम डेटा डेटा साइंटिस्ट करते हैं. कॉपी करना एक जगह से दूसरी जगह मैनुअली. कभी कभी CLI कमांड से करते हैं, कभी कभी वो अलग सर्विस है एजोर डेटा फैक्ट्री, एजोर डाटाब्रिक्स है, उसके थ्रू से करते हैं. बट वो उनको डेटा साइंटिस्ट बोलते हो. तुम करने लगे तो तुम भी बन जाओगे डेटा साइंटिस्ट. नाउ SKU तो हम देखें. अगर कुछ समझ नहीं आया जस्ट टाइप एजोर CLI कमांड फॉर पब्लिक एक्सेस स्टोरेज account. Google will give you the command also. So here account upgrade resource group. See, allow public access to. ऐसा कुछ देना पड़ेगा. And on the container level, set permission name, public access, blob and the blob name. So at two level, at the storage account level, public access ऐसे enable करना है. और इसके ऊपर कंटेनर लेवल पे जो उसके अंदर स्टोरेज अकाउंट के अंदर बनेगा उसमें ऐसे.
तो हमारा यहाँ पे अगर हम नहीं दे रहे कुछ तो बाय डिफॉल्ट बंद रहेगा, इट वोंट बी अलाउड फॉर पब्लिक एक्सेस। यहाँ पे ऐसे ही कुछ था, पब्लिक नेटवर्क एक्सेस अनेबल्ड था। ये हम स्टोरेज अकाउंट पे देख रहे हैं। सेम चीज अगर हम कंटेनर लेवल पे देखेंगे, कंटेनर लेवल पे, कंटेनर, ये हमारा कंटेनर है। इस लेवल पे हमें वो नहीं दिया है, तो सीधा जेसॉन व्यू। तो रूट लेवल पे ही देखते हैं, रूट लेवल पे निकाल सकते हैं क्या इसका। डॉलर वेब कंटेनर कुछ है क्या? वेब एक्सेस चाहिए तो हॉट यहाँ पे है, ब्लॉब के लिए अलाउड है, सेंट्रल इंडिया, सपोर्ट HTTPS ट्रैफिक, दैट इज फाइन, इंक्रिप्शन, allow cross tenant. Cross tenant means two different Azures are running. From there, can you allow access? Here, you see public network access enabled. ये हमारा किस लेवल पे लगा है? स्टोरेज अकाउंट लेवल पे लगा है, उसका प्रॉपर्टीज है। सेम वे कंटेनर का भी आना चाहिए। कंटेनर सर्विस को दिखा नहीं सकते क्या यहाँ पे? शायद कंटेनर यहाँ पे दिखने नहीं दे रहा है, कंटेनर का यहाँ जेसॉन देखने नहीं दे रहा है। बट कंटेनर के लिए अगर अनेबल करना है तो ऐसे करेंगे, गूगल से पूछिए और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन से निकाल के। यहाँ कंटेनर कमांड, एजूर कंटेनर कमांड क्रिएट, क्रिएट में पब्लिक एक्सेस है ना, यहाँ पब्लिक एक्सेस, पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा यहाँ पे। तो एग्जांपल नीचे दिया होगा, क्रिएट स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज कंटेनर इन अ स्टोरेज अकाउंट दैट अलाउ पब्लिक रीड एक्सेस। सो जस्ट हमें बोलना है पब्लिक हाइफन एक्सेस ब्लॉब, डन हो जाएगा वो। तो समझ गए कैसे रीड करना है डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ से पता करना है, ये समझ में आया कि नहीं? इतना टाइम तो मैं इस पे क्यों स्पेंड करूंगा। क्लियर है अभी? तो अभी हम इस कमांड को जाके रन करेंगे सीधे, क्योंकि हर चीज PDF पे लिख के तो नहीं दे सकते ना, कुछ कुछ जानना भी पड़ेगा कि जहाँ हमको नहीं मिला तो हम कैसे खोज के लाएं। कितना चीज रटेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, इंटरनेट भर गया है डॉक्यूमेंटेशन से। सो अभी देखते हैं एजी लॉगिन किया हुआ है नहीं। अगर एजो लॉगिन नहीं होगा तो वो एक्सेप्शन देगा, वो बोलेगा लॉगिन करो पहले। सो एजी एजो लॉगिन टाइप करना पड़ेगा। सो अभी ये इस रिसोर्स ग्रुप पे बनाएगा, तब तक नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड इज टू क्रिएट अ कंटेनर, जिसका नाम कुछ देंगे, पब्लिक एक्सेस ऑलरेडी है यहाँ पे, दैट इज गुड। हम्म, ओके। स्टेप टू, क्रिएट अ कंटेनर विथ पब्लिक एक्सेस। समझ में आ रहा है सबको कि सब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं? आ सौरभ, रहा है सर। आ रहा है सर समझ में। गुड।
स्टोरेज अकाउंट का क्या नाम दिए थे हम? ये दिए थे। तो इसका कंटेनर का नाम ये है। तो एजोर स्टोरेज कंटेनर क्रिएट, इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर क्रिएट करेगा इस नाम से। इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर इस नाम से, इमेजेस नाम से एक कंटेनर बनाएगा जिसमें पब्लिक एक्सेस अलाउड होगा, बोल रहे हो। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ इसको। ये बना दिया है, एक्चुअली ये बन चुका है। वो कभी कभी हैंग हो जाता है, वो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगाते हैं। तो इधर जाते हैं, अभी हम स्टोरेज अकाउंट, ये रिसोर्स ग्रुप खोलते हैं, टेस्ट वाला। ये देखो यहाँ बन गया स्टोरेज अकाउंट, है ना, टाइप स्टोरेज अकाउंट सेंट्रल इंडिया। अब इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें, अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कंटेनर में कोई कंटेनर नहीं होगा। कंटेनर, कंटेनर अगर ढूंढेंगे, इसके अंदर कोई कंटेनर है नहीं। तो अब बनाएंगे कंटेनर। कैसे बनाएंगे कंटेनर? ये जो कमांड है इससे। क्लाउड डिफिकल्ट है कि इजी है? सब एक पैटर्न पे अगर सीखोगे, पैटर्न पे, जैसे अभी सीख रहे हैं, तो डिफिकल्ट है या इजी है? इजी है। तो जल्दी सीख के नेक्स्ट क्या करना है सबको पता ही है। तो जितना हैंड्स ऑन करना चाहते हो अभी कर लो कंटेनर, ताकि सब डर वर सब चला जाएगा। तो कंटेनर में रिफ्रेश करेंगे, स्टोरेज अकाउंट SDB2, कहाँ पे बनाया वो कंटेनर? Created false. There is no credentials provided in your command runner. We will query for your account key of the storage account. It is recommended to provide access key, sex token in your credentials. You can also add auth mode login to your command. ऐसा क्यों बोला? एजी लॉगिन कर लेते हैं एक बार। उपासना समझ में आ रहा है सब? हाँ सर, समझ में आ रहा है। खुद से भी पढ़ना सोचना शुरू करो, ये डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें हैं। तो थोड़ा स्पीड जा सकते हैं हम, अगर जल्दी पढ़ोगे, जल्दी सीखोगे, तो जल्दी जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। जब मैंने एजी 900 का प्रैक्टिस टेस्ट दिया था तो मुझे उसमें अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस दिखे थे इसी उससे, स्टोरेज से। हाँ मेरे बहुत। एक दो एमसीक्यू रॉन्ग हुए थे ओनली ऑन दिस स्टोरेज टीयर। ओह। हॉट टीयर, कोल्ड टीयर, कूल टीयर, आर्काइव टीयर, से 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें एक केस स्टडी दे दिया था, पैराग्राफ। व्हाट एंड दे आस्क लाइक व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल tier for this particular above scenario. हाँ करेक्ट, सिनेरियो बेस्ड हो गया, वो पूछते हैं। वो सही है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। तो अभी कमांड में, चलो इसको दे देते हैं। तो इंडस्ट्री में भी CLI कमांड्स यूज करेंगे, मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट विंडो यूज करेंगे? नहीं नहीं, ये कमांड प्रॉम्प्ट कभी कभार कमांड लाइन यूज करो, मोस्ट ऑफ द टाइम बाइसेप टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाए सब। बाइसेप्स टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाए।
तो ये जो है चल नहीं रहा है, तो इसके साथ हमें ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं, या अकाउंट की एग्जांपल देखते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट कहाँ से मिलेगा? हमको एजोर का वहां से मिल जाएगा। उसको यहाँ से जाके कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से निकालेंगे। कनेक्शन एक्सेस कीज तो है। हम्म, कनेक्शन स्ट्रिंग भी है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। बेसिकली कमांड लाइन से कमांड चलाने के लिए वो बोल रहा है ऐसे नहीं करने दूंगा, यू नीड टू हैव कनेक्शन स्ट्रिंग और एक्सेस की, वरना कोई भी तुम्हारे कंटेनर के अंदर बना सकता है। तुम्हारे स्टोरेज अकाउंट के अंदर कोई भी चाहे तो फोल्डर वोल्डर बना सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो उसका सेफ्टी के लिए आइदर यू गिव अ की और कनेक्शन स्ट्रिंग। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि यहाँ पे अपना डाल देना, ये मेरा मत चलाना, क्योंकि मेरा तो अभी डिलीट हो जाएगा। सॉरी। तो अभी क्रिएटेड ट्रू आना चाहिए, अभी भी क्रिएटेड फॉल्स है। जाके देखते हैं क्या कर रही है। हम्म, एक सेकेंड, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने इसको तो पब्लिक एक्सेस नहीं दिया है ना। स्टोरेज अकाउंट हमारा जो बना है वो पब्लिक एक्सेस वाला नहीं बना है। तो पहले वो कर लेते हैं, उसको पब्लिक एक्सेस देते हैं। तो ये कमांड है टू गिव पब्लिक एक्सेस टू स्टोरेज अकाउंट। यहाँ से अगर जाके देखेंगे स्टोरेज अकाउंट पे, सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो पब्लिक एक्सेस नहीं है। तो नहीं है तो शायद उसके अंदर जितने ये बनेंगे, कंटेनर्स बनेंगे, वो सब तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होंगे ना, अगर यही पब्लिक एक्सेस नहीं है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ अनेबल्ड, बट लेट्स डू इट विथ कमांड। तो एजोर अकाउंट अपडेट स्टोरेज अकाउंट नेम डाल दो, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप डाल दो। अपडेट कर रहे हैं ये जस्ट उसी चीज को अपडेट करेगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए कह रहा है। दिस वुड बी सफिशिएंट। रन करके देखते हैं पहले इसको। अभी जाके देखते हैं कि
पब्लिक एक्सेस एनेबल हुआ या नहीं, ये एनेबल होना चाहिए, अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस। अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस एनेबल हो गया। तो मैं ये एडिट किया, तुम कुछ भी एडिट कर सकते हो। अपडेट, ये टाइप का अपडेट कमांड है। तो किसी भी रिसोर्स पे क्रिएट अपडेट डिलीट कमांड्स होते ही है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब क्रिएट हो गया, देख रहे हो? अब क्रिएट हो गया। तो वो सही एरर नहीं दे रहा था उस समय। एरर उसको देना चाहिए था कि भाई ऐसी बात है कि तुमने पेरेंट को ही पब्लिक एक्सेस नहीं बोला है, चाइल्ड क्यों बनाना चाहते हो पब्लिक एक्सेस वाला। तो एनोनिमस एक्सेस ब्लॉब दे दिया यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट करके एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। जो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यू हैव टू बी श्योर अबाउट एवरीथिंग। तो इसको मैं डिलीट करके, मैं इसको बिना, जो हमारा एक्सेस था ना, सिंपल, बस यही कमांड देना चाहता हूँ, कोई की भी नहीं, कोई टोकन नहीं। तब बना रहे क्या वो? नहीं बनाया। तो वो की भी देना पड़ेगा, जो हमने दिया कनेक्शन स्ट्रिंग ब्लॉब का निकाल के दिया ना, वो देना पड़ेगा, तब वो बनाएगा। इमेजेस ब्लॉब एक्सेस क्या हो गया अब इसको? कनेक्शन स्ट्रिंग फिर से ऑफ हो गया क्या वो? कॉन्फ़िगरेशन एनोनिमस तो है। एक्सेस कीज, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी, पेस्ट। कॉपी करते हैं, रन करते हैं फिर से। वो टोकन एक्सपायर हो गया होगा। जो कनेक्शन स्ट्रिंग था ना वो एक्सपायर हो गया होगा, इसलिए नहीं दे रहा था, अब दे रहा है। ओके, तो ये बन गया, इमेजेस बन गया, पब्लिक एक्सेस भी है इसको। तो अब इसके ऊपर हमें फाइल अपलोड करना है। फाइल को हम अपलोड करेंगे। अपलोड फाइल के लिए क्या करना है? सिंपली ये लिस्ट के लिए, लिस्ट द ब्लॉब कंटेनर्स, कितने फाइल्स हैं उसमें, डाउनलोड के लिए क्या है, डिलीट, एक पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है तो उससे क्या है, स्टोरेज अकाउंट डिलीट करना है तो क्या है। बहुत सारे कमांड्स है जो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अभी मैं तुमको एक अपलोड करके दिखा देता हूँ। बट जो मैं नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मत करो, तुमको भी वो करना है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे बैठ के एक एक कमांड तो मैं नहीं दिखा सकता ना। अपलोड अ फाइल टू द इमेजेस कंटेनर, ये कमांड है।
तो हमारा स्टोरेज अकाउंट का नाम ये है। और आधा कमांड क्या था इसका? फाइल कहाँ से उठाओगे फाइल? इमेजेस कंटेनर में डालेंगे, नेम, और फाइल कहाँ से लाएंगे हम? सो बेसिकली ये हम मान लो इस फोल्डर से ही एक कमांड रन कर लेंगे। मैं इमेजेस में चले जाता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, कॉपी कर लेते हैं, सीडी, ओनली एफ आएगा, ओनली एफ, एफ एंड कोलन। हाँ हो गया। सीडी, यहाँ तो जाना है क्या? नो, पहले ड्राइव चेंज करना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली एफ, एफ कोलन, एफ कोलन, ओनली एफ कोलन, नॉट सी डी। एफ कोलन, ओके ठीक है, गुड। यस। अभी यहाँ से फाइल का नाम उठा लेता हूँ, मान लो रिफैक्टर, रीनेम, फाइल डॉट स्लैश पेस्ट। तो वो वही बोल रहा है, एक्सेस उसमें नहीं दियो, तो देखते हैं अपलोड किया भी कि नहीं। अपलोड कर दिया है, बट वार्निंग दिया कि तुमने उसमें मुझे ये पाथ नहीं दिया था, कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं दिया था। तो ये अपलोड हो गया, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है अभी तक? अभी ये सेशन खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, बट इसको मैं एक दो और कमांड चला के दिखा दे रहा हूँ। लिस्ट ब्लॉब्स इन ए कंटेनर, बहुत सारा ब्लॉब अगर एक कंटेनर में, मतलब बहुत सारा फाइल्स है अगर कंटेनर में, तो उसको कैसे लिस्ट कर सकते हैं? डिस्प्ले बेसिकली। कंटेनर के अंदर एक 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 फाइल को एक एक ब्लॉब बोलते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ ये करने जाऊं, तो इमेजेस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, एक ही फाइल डाला हूं मैं, तो एक ही आएगा। स्टोरेज अकाउंट ये अगर दे दूं, तो एक ही आया। वो माई फोटो डॉट जेपीजी आया। अब मैं मान लो इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 01, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, सॉरी, नीचे वाला वो चेंज कर देता हूँ 01, और इमेज इसका डाल देता हूँ $वेब, जो हमारा पहला स्टोरेज अकाउंट में था ना, जो रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट, तो उसमें वो मल्टीपल फाइल्स दिखाएगा यहाँ पे। आ गया, एसेट, CSS। तो बेसिकली ये तरीका है लिस्ट करने का, जानने का कि क्या क्या फाइल एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही फिर आगे चल के तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो एक को,
अब डिलीट करना है, डिलीट कंटेनर डिलीट कर सकते हो, स्टोरेज अकाउंट डिलीट कर सकते हो। जैसे मुझे डिलीट करना है, एक पर्टिकुलर आइटम डिलीट करना है, ये कर लो। स्टोरेज अकाउंट ही डिलीट करना है तो मैं डायरेक्टली स्टोरेज अकाउंट ही डिलीट कर लेता हूँ। तो इसमें कमांड ऑलरेडी है, प्रैक्टिस करना। स्टेप 5, स्टेप 6, डिलीट स्टोरेज अकाउंट, डिलीट ए ब्लॉब, जो तुम्हें डिलीट करना होगा। तो स्टोरेज अकाउंट को ये और ब्लॉब को डिलीट करने के लिए ये डाल दो। बस चेंज कर दो अपना जो भी नाम है, वो उस नाम से वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ इसको, एक लाइन पे ले आओ, तो फाइल डिलीट हो जाएगा। अगर ये सेशन खत्म हो जाता है तो हम लोग क्लास कंक्लूड कर देंगे। रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी रिसोर्स ग्रुप अगर डिलीट कर दोगे तो सारे रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो हमने स्टोरेज अकाउंट कवर कर लिया। प्रैक्टिस करो स्टोरेज अकाउंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव, एनी एग्जाम, इंटरव्यू, सर्टिफिकेशन। तो ये डिलीट हो गया, ब्लॉक डिलीट हो गया। स्टोरेज अकाउंट डिलीट करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। स्टोरेज अकाउंट के लिए सिंपली ये कर लो, ये है तुम्हारा स्टोरेज अकाउंट का नाम और ये है तुम्हारा रिसोर्स ग्रुप। ओके, चलो फिर कंक्लूड करते हैं क्लास। विल अपलोड द वीडियोस और पिंक कर दूंगा ग्रुप में। तो कंटिन्यू करो इसको, कल के क्लास से पहले इसको प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। ये यस देखो, सर। ये भी डिलीट हो जाएगा अब। स्टोरेज अकाउंट ही डिलीट हो गया है ना। टेस्ट में, रिसोर्स ग्रुप टेस्ट में स्टोरेज अकाउंट नहीं होगा अब। रिफ्रेश करेंगे, गॉन, डिलीट हो गया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो। बाकी दूसरा रिसोर्स ग्रुप मैनुअली डिलीट कर देता हूँ मैं, डेव वाला, टू अवॉइड कॉस्ट।